नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नामे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच पॉसिबल एंड शेयर एंड कमेंट टू। ये हमारी इससे मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है और वीडियो शेयर होती है, बस इतना ही। लेकिन ये एक बड़ी मदद है। अच्छा, मैं इंश्योरेंस के ऊपर आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मेरे साथी ने मुझे भेजा है। वो कहते हैं, रिसीव्ड IRDA mail 2 days back on receipt of IRDA directions. Now NIA acted and sent me mail yesterday. In nutshell, we pay hefty premium for the benefit of brokers, TPA and insurance. That is NIA, that's it. और ये जो है महंगे प्रीमियम के संबंध में इन्होंने बताया है। ग्रीवेंस रिड्रेस सेल से भी इन्हें आया है, तो ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सारा। ये इस प्रकार है, लिखते हैं आगे। अच्छा, ये कहते हैं, डियर सर मैडम, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग द न्यू इंडिया एश्योरेंस। वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। वी हैव अगेन फॉरवर्डेड योर इशू टू कंसर्न टीम ऑन अर्जेंट बेसिस। प्लीज वेट फॉर सम टाइम, वी विल गेट बैक टू यू एट द अर्लीस्ट। प्लीज कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी फर्दर क्वेरी एट tech.support@newindia.co.in or call us at our toll-free number, that is 1800-209-1415. Thanks and regards, Bhupendra Kushwaha. Contact us 18800-209-1415. Email tax.support@newindia.co.in. वेबसाइट www.newindia.co.in। ये इन्होंने इनको भेजा है। आगे कहते हैं, आगे जो मैं आपको जवाब दूंगा इसके संबंध में इनका मत सुन लीजिए। इन्होंने अपना मत भी दिया है, उसमें अपना विचार भी बताया। ये कहते हैं, आई एग्री विद योर व्यूज ऑन TPA. देर आर नॉट प्रोफेशनल एंड डोंट फंक्शन as per IRDA HIR 2016 guidelines, either as per IRDA HIR 2016 guidelines, wide clause number 27.1, the insurer shall settle or reject a claim as may be the case within 30 days of the receipt of all of last necessary document. But in my case, though claim for reimbursement was submitted on 29 December 23, even after 2 months, now claim remains unsettled. I have sent a reminder mail on 27 January 24 to know the status and no demand for any additional documents, if any, either from TPA till date. I even complained on NIA, the insurer, by mail tech.support@newindia.co.in, griho.newindia.co.in and IRDA. Only yesterday I received a mail from NIA as under on directions from IRDA. Overall situation is not in favor of we the insured despite paying hefty premiums. Very sad indeed the plight of retirees. और अब मैं आपको ये जो मेल आई है वहाँ से ये भी बता देता हूँ। ये कहते हैं, डियर सर मैडम, नंबर 1, वी एक्नॉलेज योर कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरर. नंबर 2, योर कंप्लेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद IRDA वाइड टोकन नंबर 02-24-020-844 and the same has been electronically forwarded to the insurer for restoration. You may either visit https://bima-bharosah.gov.in or call IRDA grievance cell center at the toll free number 155-255 or 1800-425-4732 to know the status of your complaint. Number 3, in case your complaint has not been attended to by the insurer within 2 weeks or you are not satisfied with the insurer resolution, you may
escalate the complaint through https://bima-bharosa.irdai.gov.in. Fourth, if however the nature of your grievance falls within the scope of the insurance ordinance, you may file your complaint with the insurance ordinance ombudsman for examination under the insurance ombudsman rules 2017 as amended in 2021. Council of Insurance Ombudsman is the administrative authority of insurance ombudsman. For further details, you may please visit the website www.cioins.co.in. Fifth, please note that IRDA only facilitates the resolution of grievances by insurance but does not adjudicate upon complaints. For information about the grievances redressal mechanism in insurance sector and role of IRDAI, please refer the handbook on the insurance sector grievances redressal system. You may access the book at http://www.policyholder.go.in/grievance-system.aspx. Regards, Policyholders Protection and Grievance Redressal Department, IRDA, SY number 115/1, Financial District, नानक राम गुड़ा, गोचबोविली, हैदराबाद 500032। तो ये इन्होंने दिया है इनका आंसर। मुझे तो ये बिल्कुल ही बेकार आंसर लगा है। तो ये चल रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में। कंप्लेंट करो तो इस तरह के आंसर आते हैं, और तुम्हें बताओ तो वो क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। साथियों, ये आजकल की कहानी है इंश्योरेंस सेक्टर की, और लगातार इंश्योरेंस सेक्टर और ये सब जो है डोजेज दे रहे हैं एम्प्लॉइज़ को, और एम्प्लॉइज़ नुकसान खा रहे हैं लगातार। हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम 2015 में 7,500 होता था, अब 1,07,000 तक कर दिया, और सुपर टॉपअप को इन्होंने टॉपअप कर दिया है। और उसके बाद इन्होंने 45,000 का प्रीमियम रखा था 2017-18 में, 45 का, लेकिन उसमें डोमिसिलरी 40,000 कुछ डिजीज जो है डोमिसिलरी वाली उसमें वापस मिल जाता था, तो 5,000 ही था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे हटा दिया, और तमाम जो है नुकसान वाले काम करते रहे, और जिसका भारी नुकसान हमारे रिटायरी साथियों को हो रहा है, और इसका सभी हम लोग विरोध करते हैं। और हमारी यूनियंस जो हैं UFBU के कंपोनेंट वो जो है हमारा नुकसान करने में लगे हुए हैं, और लगातार नुकसान कर रहे हैं। हम ये मुद्दा अनेकों जगह उठा चुके हैं, वीडियो के माध्यम से, मेल आदि के माध्यम से, फाइनेंस मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, लोकसभा स्पीकर तक, सब जगह हमने उठा लिया मुद्दा। और PM, फाइनेंस मिनिस्टर, DFS, IBA चेयरमैन, और पता नहीं किन किन लोगों को, लेकिन ये मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं, और रिटायरी साथियों का सारा पैसा लूटा जा रहा है इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।